नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। एंड टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट IBS-M मतलब IBS मिक्स्ड। कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, कभी ब्रिस्टल स्टूल स्केल चार्ट पे नंबर 1 या 2, मतलब एकदम कड़क गोले गोले, या फिर अ लॉट ऑफ एक्स एंड पेन्स वाइल पासिंग मोशन, या फिर 5, 6, 7 पे लाइक रियली सॉफ्ट लूज स्टूल्स एंड at both extremes having pain, burning, gas, nausea while passing stools even after that, and generally feeling a sense of loss or control over your gut. हेल्दी स्टूल्स नंबर 3 या 4 के है, जहाँ पे वो वेल फॉर्म्ड है, दे डोंट कम विथ एनी पेन, नोशिया, गैस, ब्लोटिंग, और आपको पास करते वक्त उन्हें व्हेन यू आर पासिंग देम यू हैव नो एक्स और पेन्स। मैं आपको एक स्टोरी सुना दूँ। एक्चुअली वन ऑफ माई माउशीज, शी यूज टू लर्न सिंगिंग एंड लेटर शी यूज टू ऑल्सो लर्न द पेटी। तो उनको पेटी सिखाने के लिए एक बुजुर्ग आदमी उनके यहाँ पे आते थे, उनको पेटी सिखाते थे, हारमोनियम, और he must have been at least 80+. And Maushi used to be like impressed with him, that he's so talented, he's so sincere, he's so punctual, he's so kind and generous in his teaching. So and she used to feel के इनके कला को या इनके हुनर को जितना जितना recognition मिलना चाहिए था उतना शायद नहीं मिला. So one day she told her sir this, that sir, I feel that you haven't gotten everything that you really deserved. और फिर उन टीचर ने मेरे मौसी को बोला that देखो, हर रोज़ जब मैं बाथरूम में जाता हूँ, so he said in Marathi, मला बांधून होते. He said when I'm on the potty, I pass motion which is as soft and as well formed as a carrot, and that to me is the recognition of my kala. It is the gift of my sadhana, and it is all the sukh and sampatti that I would have ever wanted. I'm 86 and my gut has not slowed down. You think an artist needs anything bigger? I know what to let go of and I pass it so smoothly. तो तब से ये स्टोरी मेरे दिमाग में बैठी हुई है. और अभी जब even young people seem to have IBS and so much pain associated with their gut, I think an 86-year-old classical music teacher's insight on stools is worth. Now what I want to tell you is, when we no longer feel in control of our motion, जब वो बहुत unpredictable हो जाते हैं, तो हम लोग desperation में क्या क्या करने लगते हैं, which is what I have seen in my experience. So number one thing जो हम लोग बहुत सारा desperation में करने लगते हैं is adding things like हर रोज़ ईसबगोल ले लिया, या हर रोज़ साइलम हस्क ले लिया, या फिर और what are the other things that they do? Yeah, every day take some kind of a fiber gel just to pass motion. This is one of the most common things that happen. हर रोज़ पब्लिक इसको हर रोज़ लेता है, और फिर बोलता है नहीं, ये तो मेरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने ही मुझे बोला है, ये तो आयुर्वेद में भी बोला जाता है, ये तो मेरे डॉक्टर ने भी मेरे को बोला है, ये तो मैं पहले से करता आ रहा हूँ, मेरे फूफड़ जी भी करते थे तो मैं भी करता हूँ. एंड देन टेकिंग इट एवरी सिंगल डे, और यू गो टू समवन एंड दे टेल यू कि नहीं बॉस, तुम फाइबर ऐड करो, तो तुम फाइबर ऐड करने के लिए ये हर रोज़ रात को लेने लगे. And then the next day you feel like you're getting some kind of a motion. Now what is that? आज तो मोशन हो जाता है, लेकिन कल के लिए आपको ये जो आज आप ईसबगोल की मात्रा ले रहे हो उसमें काम नहीं चलता. Then you need more of it, and you keep needing more and more of the fiber gel, of the psyllium husk or whatever else that you're needing. और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आप इसको कितना भी ले लो, basically everything that you take in the category of laxatives, कि आप इसको कितना भी ले लो, आपका काम जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं होता, and that it continues to be a
problem for you. So you must know that you can't be just depending on these kind of things. You have to think of it. कभी अगर आपको किसी ने prescribe किया तो you think of it like the way you think of जब आप साइकिल चलाते हो, you know, when you are learning to ride a cycle, you use something called as training wheels. मतलब जब हम लोग चालू करते हैं साइकिल सीखना, तब हम बाजू में ट्रेनिंग व्हील्स लगाते हैं ताकि कोई गिरे नहीं. अभी ये ट्रेनिंग व्हील्स अगर आपको ज़िंदगी भर लगे तो फिर आप कभी भी साइकिलिंग सीखोगे ही नहीं. So even if you need any of these things, you think of it as training wheels. एक दो दिन आपने यूज़ किया, थोड़े समय के लिए, लिमिटेड समय के लिए आपने यूज़ किया तो ठीक है. Otherwise it makes you more it slows down your gut. It is counterproductive क्योंकि ये बैड बैक्टीरिया के साथ में अच्छा बैक्टीरिया भी आपके सिस्टम से कॉन्स्टेंटली फ्लश आउट करते रहता है. So please don't use this as a strategy that forever. It can be a short time, 2-3 दिन, and then you have to be able to get back to business. Remember, if your large intestine is not troubled by excessive fiber gel, by excessive laxatives, then it will perform its function of making the waste product and propelling it or throwing it out of your system. Okay? तो उसको ज़रूरत से ज़्यादा अगर हेल्प करोगे तो वो पुअर थिंग लेज़ी ही हो जाएगा. हम लोग ये रोज़मज़ा की ज़िंदगी में भी देखते हैं दैट इफ़ यू हेल्प योर चाइल्ड फॉर टू लॉन्ग तो 28 में भी 32 में भी अपने को पॉकेट मनी ही देना पड़ता है. They don't land up doing anything on their own. So how do you get them to start doing things on your own? But from the time that they're 16, 17, 18, थोड़ा उनका खुला छोड़ो. You start, giving them small exposure to little bit of work, and over a period of time they become self-reliant. So वैसा ही है कि अगर अभी आपका गट ठीक नहीं चल रहा है तो थोड़े टाइम के लिए, like I said, 2-3 days, and then you have to be on your own. So be careful with the way you're using these training wheels. You cannot overuse them. That's one aspect. The second aspect is being on diets which constantly need supplements. Supplements like magnesium typically tends to happen when you are on a low carb or a keto diet. कि पॉटी होती ही नहीं है अगर आपने फाइबर नहीं लिया और उसके साथ में मैग्नीशियम नहीं लिया. Again, same thing. Think of it as a training wheel. If you're eating correctly, the gut will do all of its functions of receiving or assimilating all of the nutrients from the food and also excreting. The third thing that I have seen, that people do very, very often is do things like enema or fasting or whatever else. All of this is done in the name of detox or cleanse, or maybe just doing some random juices, या फिर doing some क्रिया. किस चीज़ के लिए? यही पॉटी साफ हो जाए उसी के लिए. लेकिन again, leave the gut by itself and it will learn to do its own task. ये बहुत ज़्यादा क्रिया और जूसेस और एनिमा और फास्टिंग ये सब करके अगर आपको मोमेंटरीली भी रिलीफ मिला तो भी लंबे समय के लिए आप आपके किडनीज़ को, आपके लिवर को, आपके ब्रेन को, आपके स्टमक को, यू आर शॉकिंग इट फॉर नो रीज़न व्हाटसोएवर. ये सब प्रोसेसेस करके आपकी बोन मिनरल डेंसिटी, आपका मसल टोन भी पुअर होते जाता है. तो एक छोटा प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए या एक प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए 10 नए प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में खड़े हो जाते हैं. सो बी वेरी केयरफुल ऑफ शॉर्ट टर्म फिक्सेस एंड डोंट फॉल फॉर द क्विक टेम्पटेशन ऑफ डिटॉक्स और क्लेंजिंग. द बॉडी इज मोर देन केपेबल ऑफ क्लेंजिंग इटसेल्फ. ऑल राइट, देन other than this, what's the other thing that we see? Another thing that we see is
पीपल सेइंग कि भाई अभी तुमको है ना ये रेगुलर सब खाना छोड़ना पड़ेगा, रोटी बंद, चावल बंद, कल से सुपर फूड्स का डाइट, खाली सुपर फूड खाने का। सुपर फूड खाने का मतलब क्या? कोई ग्रीन स्मूदी पीने का जिसमें कि केल हो, एवोकाडो हो और कुछ ग्रीन कलर का चीज़ हो, माइक्रो ग्रीन्स हो, या फिर सिर्फ कीनवा हो। अभी रोटी वोटी बंद, कीनवा। अभी अगर केक भी खाने का हो तो आमंड फ्लोर का ही खाने का, नॉर्मल मैदे का तो खाने का ही नहीं। सो ये सुपर फूड्स जो हमारे दिमाग में हैं, ये सारे अनप्रोनाउंसेबल, एक्सपेंसिव, इम्पोर्टेड फूड्स, ये सुपर फूड्स क्यों बन जाते हैं? आपको पता है ये सुपर फूड्स क्यों बन जाते हैं? ये सुपर फूड्स बन जाते हैं हमारे मेंटालिटी की वजह से। इनवेरिएबली ऑल ऑफ दिस सुपर फूड्स, चाहे वो एवोकाडो हो, चाहे वो कीनवा हो, चाहे वो और कुछ हो, ये किसी गरीब कंट्री का ही फूड रहता है, वेदर इट इज़ साउथ अमेरिका, वेदर इट इज़ अफ्रीका, and invariably it is the food which is appropriated by the West or by the weight loss industry at large as a superfood. And when we see that the weight loss industry has appropriated it, और इवन व्हेन जब हम अमेरिका जाते हैं या लंदन जाते हैं और हम लोग बोलते हैं अरे ये लोग तो इधर भी गोल्डन मिल्क मिल रहा है, तो फिर हम लोग को लगता है कि हल्दी में असली में कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी पावर्स रहेंगे। हम लोग के भी कंट्री से उठाया हुआ है हल्दी, विच इज़ कॉल्ड कर्क्यूमिन और लाइक गोल्डन मिल्क और वॉट एवर एल्स। तो वो लोग पहले अप्रोप्रिएट करते हैं, और एक बार उधर अप्रोप्रिएट हो गया, एक बार वेस्ट ने इसको अप्रोप्रिएट कर लिया, तो फिर बाकी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के जो अमीर लोग रहते हैं वो भी इसको अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं। सो दिस इज़ अ टिपिकल थिंग दैट यू सी इन कंट्रीज़ विच हैव बीन कॉलोनीज़, कि कॉलोनाइजर्स हमारे फूड को पिकअप करके, उसको ड्रेसअप करके, उसको हैशटैग बना के, उसको वीगन प्रोटीन, एंटी इन्फ्लेमेटरी, वट एवर एल्स, आयुर्वेदिक गट क्लेंस, वीगन प्रोटीन करके मार्केट में लेके आते हैं, और फिर हम उसी को अपने डाइट में लेके आते हैं। सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट व्हाट इज़ इट दैट वी आर कॉलिंग एज सुपर फूड्स। So this is one way in which we ruin our gut. Another way in which we ruin our gut is to use another kind of superfoods. ये वाले superfoods अपने ही superfoods रहते हैं, जैसे कि मेथी हो गई, या फिर आड़िव की सीड्स हो गई, या मखाना हो गया, लेकिन फिर हम लोग इसे नॉन ट्रेडिशनल वेज में खाने लगते हैं। अरशी या फ्लैक्सीड हो गया, तो फ्लैक्सीड की अगर हम लोग चटनी बना के खाते थे, तो अभी हम उसके ALA यानी अल्फा लिपोइक एसिड या उसके फैटी एसिड प्रोफाइल के लिए उसको सुबह उठते ही खाने लगते हैं एम्प्टी स्टमक पे, या फिर उसकी स्मूदी बना के वीगन व्हाटएवर प्रोटीन या जो भी करके उसको पीते हैं। या आप आड़िव का सोच लो, अगर हम लोग पहले आड़िव का लड्डू बनाते थे, तो हम लोग बोलते हैं नहीं, अपने को आड़िव लड्डू नहीं चाहिए, अपने को उसमें से खाली आयरन और फॉलिक एसिड चाहिए, तो फिर हम लोग उसके सुबह उठते ही कुछ सीड्स खाने लगते हैं। सेम थिंग विथ मेथी, अगर हम लोग उसको पहले तड़के में डालते थे या कभी कभार उसका मेथी का लड्डू बनाते थे या फिर कढ़ी में उसको यूज़ करते थे, तो उसको भी हम लोग सुबह उठते ही लेते हैं। एंड इससे गट भी साफ़ होता है, इससे डायबिटीज़ भी चला जाता है, इससे सब कुछ होता है, करने लगते हैं। हल्दी, सेम थिंग विथ हल्दी। तो हल्दी भी अगर हम लोग एक्सेसिव अमाउंट्स में, नॉन ट्रेडिशनल अमाउंट्स में, नॉन ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशंस में अगर खाने लगे, तो अगर आपके ही फूड्स हो, लेकिन इफ़ यू स्टार्ट ईटिंग देम इन नॉन नेटिव मेथड्स, because you have gotten greedy for the nutrients that they offer, and because you have started extrapolating that one nutrient with like benefits to your gut or your blood sugar levels or anything else at all, even longevity, then that's the wrong way to do it. Superfoods, वो superfoods तभी होते हैं जब वो हो सस्ते, सुंदर और टिकाऊ। किसके लिए सस्ते? सिर्फ आपके पॉकेट के लिए नहीं, लेकिन आपके इकोलॉजी के लिए ऑल्सो। वी हैव टू लर्न टू लिव विद इन आवर इकोलॉजिकल मीन्स, ऑल राइट।
otherwise we will be facing climate change, and then no matter how clean our gut is or how thin we are looking, अगर climate change में ही sea level ऊपर आ गया और हम लोग डूब गए तो फिर क्या फ़ायदा हमारे good looks और skinny waist का. So we have to live within our ecological means, so it has to be सस्ता on our pocket and for the ecology. सुंदर मतलब वो अपने लिए भी सुंदर होना चाहिए और हम लोग वो खा रहे हैं उसकी no one else, it should not become ugly for others that you have started eating this kind of food. It should not lead to any ugly situation with your friends, in your home or with your family. And टिकाऊ मतलब ऐसे processes या ऐसे methods अपने life में implement करना जिनमें सस्टेनेबिलिटी हो, कि आपके पोते पोतिया और उनकी भी पोते पोतिया इसको सहज तरीके से अपने लाइफ में उतार पाए. सो यू हैव टू लुक एट फूड्स. सो द ओनली थिंग दैट रियली वर्क्स is really eating foods which is sundar, sasta, tikau, or local, seasonal, traditional, or simple, sensible, sustainable. These are the foods that you should be eating. Now if you've been having a mixed thing, then you must also be careful about things like मखाना. बहुत सारे लोग आजकल ट्रैवल कर रहे हैं, अभी तो फ्लाइट्स में भी बिजनेस क्लास में मखाना मिल जाता है. Okay, but if you're constipated, then मखाना will constipate you even more. तो आप ट्रेडिशनल फॉर्म्स में ही मखाना खाइए, घी रोस्टेड मखाना थोड़ा सा, या आप जब उपवास रख रहे हो तभी मखाने की खीर बना ली, सब्जी बना ली. In terms of all of that, it is fine, but just because you like something, eating too much of it, that's not the most sensible way to do it. So then what is the most sensible way of really getting out of IBS-M, okay, and all kinds of IBS? Number one, like I said, घर का खाओ. So keep your food simple. जो सीजन में हो, जो लोकल हो, वही आप खाओ. Keep it simple, keep it home cooked, okay, and keep it sustainable, ताकि आपकी डाइवर्सिटी जो है वो बनी रहे. Remember, a lot of people also end up doing things like having a lot of prebiotic drinks or probiotic drinks. ये prebiotic probiotic drinks आपके जो पैकेजिंग में आते हैं, that is also not sustainable. Also आपके गट में इतने सारे अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं that the food industry has not really identified, isolated or managed to package them as yet. So ये जो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक है ये आप ही के घर में आपको मिलेगा. सो घर पर खाओ रेगुलर फूड जिसका नाम आपको पता हो, जो आपने बचपन से खाया है, एंड यू विल बी इन अ गुड शेप. जंक फूड को हफ्ते में एक ही बार खाओ, उससे ज़्यादा मत खाओ, एंड यू विल बी इन अ गुड शेप. एंड द अदर थिंग दैट यू मस्ट डू इज़ दैट यू मस्ट ऑल्सो exercise. When you exercise, and you must obviously stay active, when you exercise regularly, exercise helps produce butyrate producing bacteria. Butyrate मतलब butyric acid, butyrate producing bacteria मतलब it's basically short chain fatty acids जो है वो अगर आपके बॉडी को मिलता है तो वो आपके गट को ज़्यादा रेजिलिएंट बनाता है, आपके इन्फ्लेमेशन को कम करता है और आपके डाइजेशन को स्मूथ करता है. सो यू डोंट नेसेसरीली जस्ट नीड टू ईट थिंग्स so that there is healthy bacteria being formed. You should also exercise, because even exercise supports good healthy bacteria, even lets you produce them. And you should sleep on time, because these two are the most undervalued aspect of eating right and keeping your gut in a good shape. Now to conclude the series, what we are going to do is मंडेला आपण मराठीमध्ये एक लाईव्ह करतोय विथ अ गॅस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट.
त्यामध्ये तुमचे जितके प्रश्न असतील तुमच्या गटबद्दल, कोलोनोस्कोपीबद्दल, IBS बद्दल किंवा IBS, IBD, अल्सरेटिव्ह कोलायटिस आणि क्रोन्सच्या डिफरन्सबद्दल, वी विल वर्क ॲट अड्रेसिंग ऑल ऑफ दोज. वी विल पुट आउट द टायमिंग्स शॉर्टली. ऑन वेन्सडे we'll have a gastroenterologist who will speak to us in English about all of these issues. How do you fix a gut? What's the difference between IBS, IBD, ulcerative colitis, Crohn's? What are the treatment options that are available? How often should you do a colonoscopy? And everything that you need to ask. We'll be doing an Instagram live. We will put up all of the details shortly. Till then, thank you so much for being with us for the entire week, watching this series and implementing simple, sasta, sundar, tikau strategies into your life. Bye bye.